मेरा पूरे सीज़न में जो सिलसिला माइंड का चल रहा था ना, वो फ्लिप तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो कुछ बदल रहा था मेहमान पे काम करते हुए. It sort of went into that realm of talking about the universe's feeling, nature's feeling. I found this video, and actually that's how my season 15 journey started. One day when universe presented me him, then I understood that there is a lot more to tell about Pakistan to the world. And then all of a sudden we get a message from Coke Studio, Zulfi bhai, and we were shocked. मुझे ये बंदा चाहिए at all costs. And he gave us like 2 days. अभी असल में बारिश बहुत हो रही है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बंदे चाहिए ताकि हम बहुत सेफ्टी के साथ जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है. कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी हमारी मदद करें इस पूरे जर्नी में. तोरवाली इज़ अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी जो कि सवात के नॉर्दर्न एरियाज़ में है. तो ये पाकिस्तान का वो बाउंड्री है जिससे एक दूसरा पाकिस्तान स्टार्ट होता है, अ कोल्डर पाकिस्तान. Only 150,000 people in the entire world speak this language. Nimchi biba abi shose bano ba ghen lanja thi tirpun thi kain takriban. These are very pure people, very innocent, despite all of these extreme conditions that they're living in. Assalamu alaikum. Yetunu yeşi asime geçti ko kesa bana meket kesrem zetirumina ye doye matu ye sana melegira simatisi ye gedi muhabati ये लड़का जो है जो गा रहा है इसको हम रो कहते हैं अपनी ज़बान में. यहाँ हमारे शादी ब्याहों में भी ये गाने गाते हैं और गाते थे पहले भी. ये खुशी का इज़हार था, महफिल सजाते थे इन गानों से. 16 years old boy, he has never ever traveled anywhere apart from the meadow. तिलवा भाई तो हम भागे हमने उन पहाड़ों पे चढ़े. हमने कहा भाई ये बच्चा हमें चाहिए, हम इसको लाहौर लेके जा रहे हैं. एंड ही थॉट इन हिज माइंड कि यार ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं और कोई लेबर काम मेरे से करा रहे हैं, एज इन हिज फैमिली एवरीवन डज. फर्स्ट टाइम इन लाहौर एंड देन फज्जे पाए. तो निज़ामुद्दीन को हम हर जगह पे लेके जा रहे थे. तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, हम लिफ्ट में गए. लिफ्ट में जैसे ही चढ़े ऊपर गए तो निज़ामुद्दीन ने हमें साइड पे किया कि यार मुझे समझ इस बात की नहीं यार, ये कमरा है, इसमें हम जब अंदर जाते हैं तो अलग माहौल होता है, जब बाहर निकलते हैं अलग माहौल होता है. I heard him. Yes. Yeah. ye doye matu ye sana melegira Sima waitisi ye garimun muabati pata.
मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना किसी को इस तरह गाते हुए, द वे ही सिंग्स, ऐसा लगता है कि कोई इफेक्ट लगा हुआ है वोकल्स पे। या त्या फुली बार बड़ा उससे हुआ ना मैंने ऐसी आवाज सुनी है कभी। ये इसकी प्योरिटी की वजह जैसी आवाज है ना। ही इज एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। वी ऑल वांट टू बी हिम। आई वांट टू बी हिम। मैं बचपन से ही पूरे पाकिस्तान में घूमी फिरी हूँ बिकॉज़ मेरे वालिद साहब जो थे उनकी नौकरी ऐसी थी कि हम लोग हर 2 साल बाद वी शिफ्ट समवेयर। आई लिव्ड एवरीवेयर इन पाकिस्तान। फिर उन ज़बानों के साथ भी मेरा एक एफिनिटी रही है। और सबसे ज़्यादा उस म्यूज़िक के साथ मेरी एफिनिटी रही है। I wake up in the morning and I wake up to Nizam's voice in my phone. I know the voice because this voice is very much like the voices that I've heard in my childhood. Expanding my world is important to me is because that gives rise to imagination. So being inspired and spinning stories and fantastical worlds that may or may not have existed is an important part of my work. So isn't it just so wonderful to be strange? To be in a strange world where everything is new and everything is weird, and so that's where the concept came from. Nizam himself and his world is what we took inspiration from. I always say that folk songs are the fittest songs because they survive. उनके इर्द-गिर्द कुछ बनाना मुश्किल होता है, daunting होता है। अभी आपने कुछ चीज़ें की हैं एंड पे। आई थिंक दे शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट डिसेंट, द लास्ट डिसेंट, The hummings. द हमिंग। बहुत अच्छा। This is the story. What do you think we can do? And so we worked on it together and it was really lovely. I liked the story we told. First of all, musically, it was one of the most fulfilling things to make. I got to sort of reach into different parts of my musicianship that I never get to normally use. And then we got to sort of the end of the second chorus and I was like, I'm just going to try something, and I changed the tempo and I brought in this completely new beat and I was like, can we? And he was like, yeah. I was like, okay, great. When that kind of came together for me, I instantly was like, okay, this is it. Just from the get-go, I was like, this is my favorite song of the season. मुझे ओवरऑल वो वीडियो देख के ना मुझे मेरा होता नहीं कि बिल्कुल दिल कनेक्ट हो गया उस विजुअल से, नूरमा से। मैं जहाँ रहती हूँ बहुत अच्छी जगह है, पहाड़, बर्फ़, लेक्स एवरीवेयर, पीसफुल जगह है। जब बच्चे कार्टून देख रहे होते थे, जब ड्रामा देख रहे होते थे, मेरा ये नहीं था। मेरा था कि कोक स्टूडियो, उनके गाने, आबिदा परवीन, अली सेठी, रंजिश ही सही। मैं टॉवल सर पे रख के, यानी बाल, और फिर हाथ में कोई चीज़ लेती थी, माइक, प्रिटेंडिंग दैट इट्स अ माइक, और फिर मैं एक्टिंग कर रही होती थी। अभी 5 साल हो रहे हैं मैं आइस हॉकी नेशनल प्लेयर खेल रही हूँ। जीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। मेरी जो सिंगिंग जो शायद है वो भी इसी क्लब के थ्रू ही मुझे शायद वो वे मिला कि हाँ, आई शुड गो फॉर म्यूज़िक। मुझे ये पता चला कि मैं ज़ेब बंगश के साथ कर रही हूँ, तब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं कब आऊँगी, कब मैं करूँगी। नूरमा हैज़ टू बी वन ऑफ द एक्टर्स इन दिस स्टोरी, सो वी स्टार्टेड राइटिंग फॉर हर कि वो उससे भी रिलेट करे और साथ साथ जब वो गाए तो वो एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी दे।
Immediately this line like jumped up. मेहमान हो तेरा सामान नहीं. मैं आना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में अच्छी नीयत के साथ, आपके साथ इंटरेक्शन के लिए आए हैं. क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में we're here for just a short while. In the middle of my take, he came and sat next to me and he just picked up my mic and he looked at me. Can I use this mic now? And I was like, yes. It was just so fun and it really like breaks that whole, the drama of it. And so after that, I just like sang my heart out because I was like, actually, he is the essence of the song. वो बड़ी अच्छी बात है कि वो एक दिन के अंदर ही वो इतना इजी हो गया सबके साथ कि वो जोक्स भी कर रहा है, थोड़ी बहुत उसको उर्दू भी अब समझ आ रही है. समझ आता है, ये मकसद है. थोड़ा ठहर के, ठीक है? ठीक. चलो ट्राई करते हैं एक दफ़ा लीड प्ले करना. ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद माइक्रोफोन्स को उसने गाया नहीं माइक पे कभी. अभी सर तुम ऊपर गा रहे हो, तुम गा रहे हो. वो जो समझाने का तरीका है ना, वो फिर बस हाथों पे इन्हीं चीज़ों पे आ जाता है कि जी मैं ये करूँगा, आपने करना है 3 का काउंट इस तरह. हाँ मैं बोलूँगा निज़ाम बस फिर बोलो ये बनी निज़ाम बस कि मैं बोलते ना बनी. ठीक है ये तरीका हो गया, बस छोड़ थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में पता चल रही होती है कि यार ये फॉर्म वैसे नहीं करा ऐसे पहले का था. ये छोटी सी बात थी कि उसने माइक हाथ में पकड़ा हुआ बस. तो ये एक छोटी सी डिटेल होती है तो जुल्फी वही पकड़ते हैं अक्सर. बहुत खूबसूरत है यार. Yeah, it's gorgeous. I wasn't expecting it to be this beautiful, and I literally felt like I'd walked into like some magical space. For me, I was relating to so many different aspects of it. It's ruins that are adorned by nature. It actually makes everything beautiful. So वो खंडर भी खूबसूरत तरीन लग रहे थे, शुरू में भी हाँ शुरू में हाँ नहीं है, देख सकते हैं. एक दफ़ा टेक देखते हैं आप. हाँ चलो. प्यार कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही यूनिवर्सल है. 2 वर्ल्ड में इसको कर दिया कि एक में हम लोग बात कर रहे हैं एंड देन हमारी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, फिर एक उनका वर्ल्ड है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है. जिसके बाद एक आइडिया आया मैजिक गार्डन का, एक फैंटेसी, एक ऐसा वर्ल्ड जो बिल्कुल अपनी एक प्योरेस्ट फॉर्म में है, इर्द गिर्द में इंसान नहीं एग्जिस्ट करते. कि यार सब कुछ सही था, हमने कहीं से कहीं थोड़ा उसके साथ ज्यादती कर दी है. सजाद वो बंदा है जो आई थिंक इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता है. एक बंदा बैठ के एक पूरा 3D वर्ल्ड बना रहा है, तो इट्स नॉट अ सिंपल जॉब. अब ये आइडिया ये इतना एक तरह से क्लोज टू माई हार्ट है कि मतलब जहाँ पे कह लें कि मैंने कनेक्ट किया हुआ है जिस चीज़ के साथ ज़्यादा, कि अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो एक बच्चा जाके बैठा हुआ है परिंदों के साथ टाइम गुजार रहा है. ठीक है. सेट का जब हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन के ऊपर आना शुरू हुए, ये एक ऐसी जगह है, वो एक रीबर्थ के साइकिल में. अब नॉर्थ में कुछ ऐसे मोन्यूमेंट्स मिले, ऐसे खंडर मिले जो सदियों पुराने थे. उन्हीं की जो इंस्क्रिप्शंस थी, जो उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर था, उनको लेके वी क्रिएटेड
this space, it has plantations growing on top of it जो एक आवाज़ से शुरू होते हैं कि आपकी जो strangeness है वो ही आपकी खूबसूरती है। एक टेक करते हैं गाइस। चलिए टेक कर रहे हैं, प्लीज क्लियर कर दें सेट को। हम ऐसी टेरिटरी को एक्सप्लोर करने जा रहे थे जो हम लोगों ने कभी फील नहीं की थी। वी जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट सो क्लोज टू नेचर कि हर तीनों आर्टिस्ट में आप देखोगे कि एक एलिमेंट ऑफ नेचर है। नूरिमा हैज सच एक एथीरियल सी उसकी फील है। शी इज रिप्रेजेंटिंग अगेन अ पार्ट ऑफ नेचर। मैंने ऐसी चीज़ें रियली मैंने पहले कभी नहीं देखी। सोचा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं जो है इधर आ जाऊंगी। I have a great canvas. I'm enjoying doing little here, little there. Saima ji, I mean, the way she really translated that look was lovely, and I think a lot of it had to do with the hair. You know, she really got lots of those, like that hair and the extensions, and the way she brought it out, it was really beautiful. हमें टेप्सी बंद में थे गाना बोनूत हम मिलफ थे है मैं गाना पूरा की आया खुशहाल हुए लेकिन मामू यकीन नहीं यो दे रहे है मैं लाहौर के नहीं पे दम दफा ज़िले में जहाज़ में कराची यानी यकीन बिल्कुल मज़ेद में बहुत प्यार से और बहुत आसानी से चीज़ें इस गाने में हुई हैं, तो मुझे इसलिए भी ये गाना बहुत पसंद है। It seems to have some like nice बरकत in it. तो पिछला सीजन ख़त्म हुआ था, हमारा था कि यार हम यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। बेस्ट आप लोगों की वजह से थैंक यू। ये खुशी है कि हाँ अब ये एक और स्टेप आगे है। It was such a big shift in terms of Coke Studio 13 साल से कैसा था। सीजन 14 में we tried for the first time for all originals। उसके बाद एक जर्नी बिल्कुल एक different direction में निकल गई and going into those world building visuals because it is not just about sonic experience, it's a visual sonic experience। एक बात हमें जुल्फी ने बताई थी कि कुछ भी झूठ होगा ना वो नहीं चलेगा बिकॉज ऑडियंस ऐसे पकड़ती है झूठ। टू स्टे ट्रू टू योर प्रोसेस एंड शोइंग द प्रोसेस इज़ योर की। जो हमें मैजिक पर्सनली एज अ टीम फील हुआ, वी जस्ट वांटेड टू कन्वे द प्रोसेस। यू बिहाइंड द कैमरा, us behind the sets, people on set, we all make up a huge team. I think it's more than actually 200 people, I would say. 4 महीने इकट्ठे गुजारे हैं हमने शूट पे, तकरीबन 1.5 साल हमने इस प्रोजेक्ट पे लगाया, बट वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल होना था अगर हम दोस्ती में निकाल लेते टाइम सारा। कि वो छोटी छोटी ख्वाहिशें गुनगुनाती हैं, सजाती हैं ये दुनिया। और एक्चुअली बात भी सही है कि आपकी कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें, कुछ आइडियाज़ ही होते हैं जो कि शाइन करके, फ्लरिश करके कभी ना कभी वो बहुत खूबसूरत बड़ी दुनियाएं बना देते हैं और आपकी दुनिया सजा देते हैं। जब बिल्कुल हम ख़त्म करे थे ना ये सीज़न, बट ये सोच रहे थे कि अगर ये जर्नी हमारी ही, हमने ब्लॉकबस्टर भी बनाया, सेलिब्रेट किया, हमने मगरुला भी किया, हमने 2 AM सारी कैफियत में भी चले गए, हमने सारी वो बात भी कर ली, इनवर्ट्स जाके रियलाइजेशंस की बात भी कर ली जो हमारे अंदर है, अपनी एंग्जाइटीज़ की बात भी कर ली। कोई और जगह है जिससे भी हम डीप जा सकते हैं और उस डीप नज़र से क्या हम दुनिया को व्यू कर सकते हैं। तो आप अपने ईगो को ब्रेक कर देते हो। And once you break your ego, you realize कि चाहतों के भी तो रास्ते कई हैं। दिल की नज़र में सभी हम ही हैं, तुम भी हम ही हो, हम भी तुम ही हो। We are all one, हम सब एक हैं।